Hello, everyone. Welcome to my show, Authors Living to Inspire. This is our third episode, and this season of Women's Day, I'm really glad to say that we have a very charming and inspiring personality with us. Her name is Dr. Swin Seni. Dr. Swin is an author, clinical psychologist, career strategist, counseling expert, and a parenting coach. She has not only fought against all the odds in her life, but also she's constantly uplifting and inspiring people across the globe through her training and counseling. She is 3 times Educational Excellence Award winner. She has also won Best Woman Entrepreneur Award by IMM and NABARD and many more national and international awards in her name. She has written 2 books under the name of Aao Chule Asman and Aadharshila Naye Jeevan Ki, which is widely touching people's lives. So let us welcome Dr. Swin Sen. So all the viewers, here is our special guest, Dr. Swin ma'am. And मैं आप सबको बता दूं that she is not only guest over here, but she is also my mentor, coach, and a person with whom I can pour my heart out. So it's really honor to have you over here, ma'am. It's truly a blessing. And I'm sure all my audience are going to cherish your wisdom. Thank you so much, dear Jyoti. Hello to everyone. I'm privileged to be here today with you on your platform. सेम ईयर मैम एंड मैं व्यूवर्स को ये भी बता दूं दैट स्विन मैम की एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि वो अपने स्टूडेंट्स का जो हैंड होल्डिंग करती है दैट इज वेरी 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 प्रीशियस बिकॉज शी नॉट ओनली वो स्टूडेंट और कोच या मेंटोर का बाउंड्री होता ही नहीं है वी आर मोर लाइक अ फ्रेंड्स and ma'am के सारे courses and sessions are power packed and it will really give you a lot of insight. So do connect with her. I'll be sharing all the details in the description box. And let's dive into the second segment of our talk, and that is our core discussion about this topic. Aao Chule Asman. So ready, ma'am? Yes. Okay. So my first question to you is, मैम जैसे आपने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी as an author or as a professional, so can you just let us know that what has truly ignited you to write a book on such a wonderful topic, इतना जो deep topic है ये self help book के बारे में. So what has truly ignited you to write all this thing? See, Jyoti, because I started this journey as a daughter, then as a daughter-in-law, wife, mother, and then a female boss to all my team members. And fortunately, in the beginning of our professional life, when we started our training and grooming institute in 91, from a very small city, Hoshiarpur, so which was globally only known for immigrants to abroad, nothing else. So, but then we initiated computer education grooming program, and we got first team member as a girl. We got few students in the beginning as girls because I used to go door to door, knocking everyone's door and like pleading people and parents, please let girls come out, because here it was not a trend to let them take high education or career especially. So then they could see me, she is doing something coming from the very big city and different environment, start trying to be adjusted in small place. So there were so many conversations, there were so many experiences. So especially I had been into youngsters since the day one, in my coaching programs, in my mental health programs, in my educational programs. So I felt very much connected to youngsters, their daily routine issues, and especially females, because in my team all the time, always female power is more than male power. That's So great. I could see and their struggles, I could understand their inner traumas. That's how they were just, जिसको कहते हैं ना भटकना, गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं, बट वो भटक रहे हैं. और जैसे जैसे सोशल मीडिया आता गया,
आपको पता है कि इतना बड़ा समुंदर है इंफॉर्मेशन का, लेकिन मेरे लिए कौन सा मोती काम का है वो पता नहीं चलता. पता नहीं. So that's how I was very fond of writing since my early age. I used to participate in poetry competition, passion, listening good songs, using songs in my training programs. It is one of my USP जिसको बोलते हैं. Yes, and we तो cherish that a lot, ma'am. कि आज कौन सा क्या, गाना सुनने तो मिलेगा. हाँ, तो मुझे छोटे होते से डांट पड़ती थी कि आपकी नोटबुक्स में कहीं कहीं कोट्स फ्रेजेस वो लिखे होते हैं, तो वो नोटबुक्स गंदी हो जाती हैं. आई यूज टू वट एवर कम यूज टू कम इन माई माइंड, आई यूज टू नोट डाउन इट. Okay. तो ये मेरे इस तरह से डायरी स्लिप्स और बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती गई. सो वन टाइम माई हस्बैंड, माई पार्टनर, माई फ्रेंड, माई गाइड, माई फिलोसफर मिस्टर प्रेम सैनी, ही सजेस्टेड मी कि इतना कंटेंट है तुम्हारे पास, इतने तुम्हारे जेम्स छुपे हुए हैं डायरीज में, you must release a book. Okay. So that's how first book आधारशिला नए जीवन की it came, and then second book आओ छूले आसमां. Wonderful, ma'am. And as you very well said that, ladies and especially women's की and, girls के बहुत सारे hidden challenges होते हैं. And as you know, आपकी जो बुक का टाइटल है आओ छूले आसमान is a perfect metaphor, कि उन्हें कैसे वो गोल्स की तरफ, उनको दिखाना है कि ये these are the goals, लाइफ में एक वो पर्पस ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है. So can you please define like what is आओ छूले आसमान for today's modern woman? Before jumping directly to today's woman, I would like to say two lines about the women in large in our society, especially Indian mindset. So ऐसा कह सकते हैं कि हम सदियों से चिर निद्रा में सो रहे थे, है ना. हम सदियों से चिर निद्रा में सो रहे थे. चिर निद्रा मतलब लॉन्ग स्लीप. और Okay. या यूं कहिए कि परंपराओं को ढो रहे थे. हाँ. तो जब ये बात आती है तो डेफिनेटली exceptions are always there in all the eras. हमने देखी हैं स्ट्रॉन्ग वुमेन लाइक झांसी की रानी, मीराबाई, अपनी अपनी तरह पसंद जिंदगी जीने वाली, और पुरुष प्रधान समाज में खुद को एस्टेब्लिश करने वाली औरतें हमने बहुत पुरानी हिस्ट्री में भी देखी हैं. लेकिन जब हम एक लार्ज मासेस को देखते हैं, दैट आई कुड रियलाइज के बहुत कुछ सप्रेस्ड है, बहुत कुछ उनके अंदर पोटेंशियल स्ट्रेंथ स्किल होते हुए भी इवन दे आर नॉट अवेयर. और फीमेल को हम क्या समझते हैं कि वो एक ऐसा बीज डालती है जिससे एक पूरा फल से लदा हुआ वृक्ष बनता है, परिवार है, समाज है, whatever. She is investing her best in grooming everyone except herself. Herself. So ऐसा नहीं है उसके पंख नहीं होते, या तो उसको अपने पंखों की ताकत का नहीं पता होता, या फिर उसके पंख कुतर दिए जाते हैं. और अगर वो अपने पंखों की ताकत की पहचान करके अपना आसमान छूना चाहती है, तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि उसको एक गलत करेक्टर लेबल दे दिया जाता है. तो बहुत अलग अलग सिनेरियोज मैंने लोगों की जिंदगी में एक्सपीरियंस किए इन ऑल माय रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इवन इन माय ओन लाइफ. कुछ सेटबैक्स मैंने देखे. तो देन आई थॉट कि मुझे कुछ ऐसा प्रोवाइड करवाना चाहिए जहां तक मैं पहुंच सकूं, जिससे उनकी खुद की अंतरात्मा जागे. अपना आसमान, अपनी खिड़की कितनी खुली है, मेरा आसमान कितना बड़ा है, वो पहचान सकें, और रियलिस्टिक तरीके से किसी भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहते हुए अपने सपनों को मार कर नहीं, अपने सपनों को भी जी कर जिंदगी बिताएं. सो Wonderful. दैट वाज द ओनली मिशन. और इसमें मेरा जो एक मॉडर्न अगर वुमेन की आप बात करते हो, जैसा आपने पूछा, मेरा एक हमेशा से मोटिव रहा है टू कीप बैलेंस. लाइक एक होती है कि दबी हुई स्त्री, एक होती है बिल्कुल बिंदास बेबाक स्त्री. तो दोनों में एक बहुत ही प्यारा सा बैलेंस होना बड़ा जरूरी है, अपनी सोच का, अपनी मॉरल वैल्यूज का. और फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जितना हम फ्रीडम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिजर्व कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उतना हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और जो एक सम्मान है उसको भी कमांड करना पड़ेगा. So this is how I have portrayed women's जिसको आप सिनेरियो बोलते हो in this book. वंडरफुल मैम, मुझे वो बात आपकी बहुत अच्छी लगी, कि कई लेडीजों के अंदर वो पोटेंशियल होता है, बट
वो इतने सेल्फ डाउट में चली जाती हैं कि उन्हें लगता ही नहीं है कि दे कॉन्स्टेंटली कंपेयर विथ अदर्स, वाओ ये वो कर रही है फील्ड में, या इसकी लाइफ तो कितनी इजी है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स वी हु हैव टू टेक द इनिशिएटिव। Yes. हर किसी की लाइफ इतनी इजी नहीं है, बस वो एक देखने का नजरिया और माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So, ma'am, in your book, you have mentioned about challenges that women faces, and Hmm. can you share few of the biggest challenge? Because as a counseling experts, also आपके पास काफी सारे cases आते हैं. So, can you share few of the biggest challenges that women faces in believing in themselves and pursuing their dream? Because I think ये self doubt बहुत ही ज़्यादा killing है. Exactly. Such a wonderful question, Jyoti. Thanks for asking this because मैंने नहीं, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, सबने ही एक्सपीरियंस किया होगा, नॉट ओनली फीमेल्स, एवरी पर्सन अराउंड अस, कि सबसे बड़ा जो एक सेटबैक, एक मेंटल ब्लॉक जिसे हम बोलते हैं, वो मोस्टली लेडीज में रहता है कि मैं काम नहीं करती, अगर मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, अगर मैं करियर ओरिएंटेड वुमेन नहीं हूँ, तो आई एम लैकिंग समवेयर। तो मेरी बुक में अगर आप चैप्टर्स में देखेंगे, हर बार ये आता है कि जरूरी नहीं कि ऑफिस जाती, कार चलाती, पैसे कमाती औरत ही जो है वो एक एम्पावर्ड वुमेन है। नो, घर को चलाती हुई, गृहस्थी को संभालती हुई, अपने बच्चों के करियर में अपना बेस्ट देती हुई, उसके लिए सेक्रीफाइस करती हुई औरत सबसे ज्यादा सशक्त और पावरफुल मैं मानती हूँ, क्योंकि उसने कहीं ना कुछ बलिदान भी दिया है। लेकिन इस बलिदान को मैं कभी भी क्वालिटीज में शामिल नहीं होने देना चाहती, क्योंकि यही उसकी क्वालिटी है औरत की, क्योंकि वो एडजस्ट कर रही है, सह रही है, बलिदान कर रही है, खुद के सपने मार रही है, इसीलिए वो अच्छी औरत है। नहीं, तो सबसे पहले जो एक फीमेल का सेल्फ डिस्क्लेमर है कि अगर मैं काम पे जा रही हूँ तो मैं घर नहीं देख पा रही हूँ, अगर मैं घर देख रही हूँ तो मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, या फिर फला तरीके से मेरा अगर ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, मेरे पास कुछ ब्रांडेड क्लोथ्स या ब्रांडेड बैग्स नहीं है, मेरे बैंक में इतना बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास अपनी खुद की कार और मेरे हाथ में मेरी कार की चाबी नहीं है, ये सारे मार्का जो हमने लगाए हुए हैं ना एक सक्सेसफुल एंड एम्पावर वुमेन के, वो हटाने पड़े। बिकॉज व्हाट आई बिलीव, trust me, I have worked with Dr. Kiran Bedi ma'am for 5 years, and she always used to say from dais all the time, be financially independent, be financially independent. Her one mission was to encourage each and every woman to financially independent. और ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहूंगी। Definitely, ma'am. I always disagreed on this because being a woman, being a business woman, being a self-independent woman, I have never carried a purse with me. I have never used any money transaction. तो मेरे दिमाग में ना एक बहुत अच्छी सी इमेज थी कि क्या जरूरत है यार, जरूरी थोड़ी है इस बात पे लड़ाई डाली जाए या इसके लिए इतना हल्ला मचाया जाए, आप वैसे भी एम्पावर्ड हो सकती हो। तो वंस इन ए पर्सनल मीटिंग आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू हर कि मुझे लगता है कई बार कि आप लेडीज को भड़काती हो। तो उन्होंने मेरी आंखें खोली ये कह के कि क्यों आपको ऐसा लगता है। तो मैंने अपना बताया कि मैंने कभी ऐसे पर्स नहीं उठाया, मैंने कभी बैंक बैलेंस नहीं देखा, दो आई एम अर्निंग, बट मेरी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, तो मैं क्यों अपने हस्बैंड को इस बात के लिए कभी कर्ज करूं या क्रिब करूं। देन शी टोल्ड मी, every woman has not the same luck as you. Absolutely. No, even especially in underprivileged classes or even some high classes also. Middle class की तो बात ही छोड़। And then she showed me those case studies, those live scenarios जो वो हैंडल कर रही थी। वो मुझे स्लम में लेके गई, वहां उन्होंने मुझे दिखाया। फर्स्ट टाइम मैंने जब दिल्ली का वो स्लम एरिया एक्सपोज किया बैक इन 98, आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मैं तो अपनी ख्याली दुनिया में थी। तो देन आई रियलाइज कि नहीं, आपको एक चीज के ऊपर जनरलाइज स्टेटमेंट कभी भी नहीं देनी चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड वंस लाइफ एंड देन गिव सजेशंस अकॉर्डिंगली। तो यही मैं अपनी फीमेल पावर को भी कहना चाहूंगी कि चैलेंजेस बाहर से नहीं आते, बाहर से चैलेंजेस आते हैं, दिखते हैं, हम पर हावी होते हैं अगर हम अंदर से चैलेंज्ड हैं। सो सबसे पहले है आत्मशक्ति, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। आप अगर खुद को जज नहीं कर रही हैं,
आप खुद को वैलिडेट एक्सेप्टेंस दूसरे से नहीं मांग रही हैं, सेल्फ वैलिडेशन सेल्फ एक्सेप्टेंस में आइए, देखिएगा आपके आसपास का माहौल धीरे धीरे जरूर बदलेगा। तो वंडरफुल सबसे पहले मैम। जो मेरे को लगता है, एक गिल्ट, एक रिग्रेट, एक कंपैरिजन, एक कंपटीशन, जेलसी, ये जो एक ट्रेट्स है ना फीमेल के पेट ट्रेट्स, उससे हमें जरूर पहले निकलना पड़ेगा, रादर देन बीइंग गेट स्टक ऑफ फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। सोशली तो जो हो रहा है वो हो रहा है, पुरुष प्रधान समाज है मैं मानती हूँ, लेकिन पहले हम अपने एक ट्राइब का हिस्सा बन के एक दूसरे को सपोर्ट करना तो शुरू करें। मैंने अपने और अपने आसपास के लोगों की लाइफ में मैक्सिमम ये एक्सपीरियंस किया है कि एक लेडी ही एक लेडी की सबसे बड़ी दुश्मन और रोड ब्लॉकर बन जाती है। ट्रू मैम। तो आई सबसे हैव पहले आल्सो हमें तो एक्सपीरियंसेस या। yes, इस चैलेंज को ओवरकम करना है सबसे पहले। अगर हम एक हो गए ना, तो किसी भी मुश्किल की कोई बिसात नहीं, कोई औकात नहीं कि वो हम पर हावी हो सके। एग्रीड मैम, वंडरफुल। सो जैसे आपने चैलेंजेस के बारे में हमें बताया ना, आई थिंक ये तो बहुत ही ऑनगोइंग चैलेंजेस है वुमेन के साथ, स्पेशली इन द डिजिटल वर्ल्ड वेयर जब वो कॉन्स्टेंटली सबके लाइफ इतने ओपनली डिस्क्लोज एंड शी फील्स दैट वाओ, मतलब वो कहीं ना कहीं अननोइंगली अपने आप को कंपेयर कर ही बैठती है मैम। तो जैसे हमने बात की चैलेंजेस की, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम दीज चैलेंजेस मैम? अब अगर प्रोफेशनल स्ट्रेटेजीज की बात करोगे तो फिर तो बहुत बड़ा एक एपिसोड इसी पे चाहिए है ओके। ना, बिकॉज एवरी केस इज डिफरेंट डिफरेंट और या। एवरी केस नीड्स डिफरेंट स्ट्रेटेजी डेफिनेटली, है ना, अकॉर्डिंग टू हर ओन लिमिटिंग सिनेरियोज, लिमिटिंग बिलीव्स। लेकिन मैं अपनी बुक आओ छूले आसमां में बड़ी सिंपल तरीके से कुछ लाइनें पढ़ना चाहूंगी, अगर आपकी इजाजत हो। डेफिनेटली गो अहेड मैम। लाइक सच के प्याले में विवेक रखें। सच मतलब रियलिस्टिक एबिलिटीज अपनी पहचाननी है, विवेक कंपोज्ड होना, कंपैशन रखना, उसमें श्रद्धा और विश्वास मिलाएं। आदर की कढ़ाई में उत्साह को गर्म करें। अपनी सारी प्रतिभा मतलब स्किल को डालकर विचार के चम्मच से हिलाएं। थॉटफुलनेस, ठीक है, धैर्य के प्याले में ठंडा करें, संतुष्टि से सजाकर। धैर्य इज पेशेंस, संतुष्टि इज सेटिस्फैक्शन। कंटेंटमेंट एंड कंटेंटमेंट। सेटिस्फेक्शन। संतुष्टि से सजाकर आभार के साथ परोसें। ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट, रिगार्ड फॉर एवरीवन अराउंड यू। और अगर इस रेसिपी को और भी स्वादिष्ट, टेस्टी बनाना है, 5 गुना अच्छी सेहत, उसमें 3 गुना महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा क्या होती है? इम्पोर्टेंट वर्क कुछ। या ड्रीम और पैशन और डिटर्मिनेशन जिसको आप बोलते हो ना, डिजायर टू सोर हाई। वह आत्मविश्वास मिलाकर 5 गुना अच्छी सेहत। सेहत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। सेल्फ केयर में 3 गुना महत्वाकांक्षा, आपकी जितनी भी एस्पिरेशंस हैं, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको मिलाकर जिंदगी के प्रति सकारात्मक नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट माइंडसेट, इसकी टॉपिंग से सजा दें। लीजिए, खुशी भी तैयार, और इसके लगातार सेवन से आप छू सकती हैं अपने सपनों का आसमान। वाओ, वंडरफुल मैम। थैंक यू। बहुत ही सो अगर लगता है कि कुछ ज्यादा मुश्किल नुस्खा तो नहीं है ये, है ना, और इस नुस्खे के साथ निश्चित रूप से डेफिनेटली आई हैव invested my best in my life. That's how I am going to suggest this. ये हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। वंडरफुल। एंड एज यू सेड कि हम ना स्पेशली आई थिंक वुमेन की सबसे बड़ी आई थिंक वो इग्नोरेंस एरिया हो जाता है, वो है सेल्फ केयर का। वो घर में सबके लिए शी हैज अ टाइम, बट फॉर हर सेल्फ वो सबसे लास्ट में रखेगी कि ठीक है, पहले बच्चे, फैमिली, हस्बैंड, इन लॉज, एंड फिर टाइम मिला तो देखेंगे। बट आई वुड रिक्वेस्ट ईच वुमेन दिन के 5 या 10 मिनट खुद अपनी पसंद की कॉफी चाय लेके बैठो, अपने पसंद का गाना सुनो,
एंड अपने Yeah. आप से बातें करो तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि यस वो जो सेल्फ टॉक कॉन्वर्सेशन होती है ना, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। यस, खुद को समझना, खुद को जानना, बहुत उसके लिए जरूरी। खुद से बात करना सबसे पहले जरूरी है। हम सबकी बात करते हैं, सबसे बात करते हैं, पर खुद से बात नहीं करते। वंडरफुल मैम। एंड इन योर बुक एक चैप्टर था जिसमें आपने नारी शक्ति के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो मैं चाहूंगी कि प्लीज आप वो हमारे व्यूअर्स के साथ भी जरूर शेयर करें मैम। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि नारी शक्ति बेसिकली, ये नारी इस धरती पर सिर्फ इसीलिए नहीं आई कि वह हर भूमिका में खुद को साबित करे, और यही हमारे साथ होता रहा है। शायद ये टैग हमने अपने आप पे खुद भी लगा लिया है ना। तो दूसरों को संतुष्ट करना, जैसे आपने बोला, हर एक के लिए करना, लेकिन खुद की केयर भूल जाना। तो इसमें जो फक्र से सर ऊंचा करने के लिए ना, मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमें हिडन पोटेंशियल बहुत दिया। आप बताइए कि किस में और ये पावर है, सृजन की शक्ति जिसे मैं बोलती हूँ। नारी शक्ति की सबसे बड़ी ताकत है सृजन शक्ति, किसी एक और जिंदगी को अपने अंदर पालना और फिर उसे इस यूनिवर्स में लेके आना, है ना। तो ये पावर ईश्वर ने सिर्फ हमें दी है, किसी और को नहीं दी। तो ये सृजन जो है, क्रिएशन की पावर है, इसको हम हर एक एरिया, हर एक स्किल में यूज कर सकते हैं। वाई जस्ट बीइंग ए मदर, वाई जस्ट बीइंग ए नर्चरर। आपको पता है, जब हमें मेरी बुक का एक लाइन है, मैं पढ़ना चाहूंगी। यस मैम। जीवन बुनती हैं स्त्रियां और दुखों के फंदे मफलर बन जाते हैं। ओह। है ना। घर बाहर के अनीतिपूर्ण बंटवारा, मतलब कितनी बायसनेस, कितनी उनके साथ जो है वो ज्यादतियां होती हैं, बायसनेस होती है, बहन होने के तौर पे, बेटी होने के तौर पे, फिर वाइफ होने के तौर पे, फिर बहू होने के तौर पे। फिर भी बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं, उसके बावजूद भी आंगन में अपना पांव रखने लायक जगह बना लेती हैं, उस घर में, उस गृहस्थी में, है ना। और एक कोना मिलता ही नहीं, और वो अपनी गृहस्थी को धीरे धीरे विस्तार देने लगती हैं, अपना आकाश भी गढ़ लेती हैं। कुछ सिलाई कढ़ाई बुनाई में अपना स्किल निकाल लेती हैं, कुछ रेसिपीज में निकाल लेती हैं, है ना। कुछ अपने बच्चों को बेस्ट मॉरल वैल्यूज, संस्कार और लाइफ देने में निकाल देती हैं। तो बताओ, क्या वो शक्तिशाली नहीं है? एब्सोल्युटली है मैम हम बट सिर्फ, या एग्जैक्टली। तो एक अदृश्य विस्तार भी होता है, एक विजिबल है कि लोग मेरा नाम जानते हैं, मेरी कोई पहचान है, मेरा ये प्रोफाइल है, मुझे ये अवार्ड्स मिले, मुझे ये रिकग्निशंस मिली। डेफिनेटली बहुत जरूरी है हर एक की जिंदगी में ये मुकाम पाना। और मैं इस वक्त इस प्लेटफॉर्म से हर उस फैमिली मेंबर को, हर उस सोसाइटी के जिसको हम बोलते हैं ना कि नेटिव को, मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने आसपास की ऐसी हर एक फीमेल को अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें, रिकॉग्नाइज करें, वैलिडेट करें, जिसे बाहर कहीं सलामी नहीं मिल रही। ठीक है दैट्स ना। वेरी तो ट्रू। उसकी आंतरिक शक्तियों को पहचानने के लिए अखबारों में नाम आना, ग्लोबल लेवल पे किसी प्रोफाइल में हाईलाइट होना जरूरी नहीं है। छोटे छोटे कोनों में छोटे छोटे काम करती हुई, घर संभालती हुई, पूरे खानदान को संभालती हुई, दूसरे लोगों की मुसीबतों में, मुश्किलों में सुन के उनका सहारा बनती हुई स्त्रियां भी बहुत बहुत पावरफुल हैं। वो लेडीज को भी अपलॉड चाहिए, उनको भी एक वैलिडेशन और एक्नॉलेजमेंट चाहिए। जब हम ये करना शुरू करेंगे ना, तो ये जो फीमेल का सेल्फ डिस्क्लेमर है कि क्योंकि मैं घर बैठी हूँ, मैंने करियर नहीं ऑप्ट किया, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रही, सो दैट आई एम एन ऑर्डिनरी वुमेन। आपको पता है, आजकल के कंपटीशन और बराबरी वाली दौड़ में ऑर्डिनरी लाइफ बिताना सबसे बड़ी पावर है। एब्सोल्युटली मैम, सब वो एक्स्ट्रा के पीछे भाग रहे हैं बट वो ऑर्डिनरी इटसेल्फ इज अ जेम एंड आई थिंक वी आर लूजिंग दिस। यस। सो आई ऑलवेज टॉक completely contrast whatever is going in society. Why? क्योंकि हमें उन चीजों को देखना है जिनको कोई देख ही नहीं रहा है, जिनके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। स्टेज से, अखबारों में, लाइव शोज में हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इतना भर भर के करते हैं, लेकिन क्या वही लोग अपने आसपास की
बहुत ही कमतर दिखने वाली, देसी, कम पढ़ी, सुगड़ गृहिणियों को कभी नोटिस करते हैं? अपनी मेड को, अपनी आया को, है ना, किसी को भी जो, क्या वो सशक्त नहीं है? उसे तो कोई प्रेसिडेंटशिप अवार्ड नहीं मिला, लेकिन सुबह अर्ली आवर्स में शुरू होती है वो, अपने गृहस्थी के साथ साथ वो हमारी गृहस्थी हमारा संवारती हैं, है ना, और उसके बाद अपने बच्चों का भी ध्यान रखती हैं। आप देखोगे, आप अब अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, आजकल के टाइम पे जितनी भी हेल्पर्स हैं, वुमेन, फीमेल स्पेशीज, जितनी भी हाउस हेल्प्स की तरह काम कर रही हैं, दे आर सो मच इनटू दिस थॉट, मुझे अपने बच्चों को इसमें नहीं लाना है, पढ़ाना है, मुझे या अपने बच्चों को एक अलग जिंदगी दे। मैम तो वो इंग्लिश मैं मीडियम में मैं पढ़ा रहे हैं, मतलब हैट्स ऑफ टू देम, मतलब दे आर वर्किंग सो हार्ड एंड बच्चों को बेस्ट ऑफ एजुकेशन, बेस्ट ऑफ लाइफ। एंड मैं देखती हूँ मेरे हेल्पर जब अपने बच्चों को लाती है इतने अच्छे से नीट एंड टाइडी तैयार होके, दे लुक सो क्यूट, एंड मैंने कहा कोई एंगल से नहीं लगता, दे आर सो मच मेच्योर्ड, एंड बहुत अच्छे से वो बच्चों की भी नर्चरिंग कर रहे हैं मैम। एग्जैक्टली, तो कितनी रॉन्ग फैसिनेशन है अबाउट पावर, अबाउट स्ट्रेंथ, अबाउट इनर पोटेंशियल। जब हमारे पास सब कुछ होगा, तो अब क्या फर्क पड़ता है पावर का? अगर हमारे आसपास सारे माहौल हालात बिल्कुल हमारे हिसाब से अकोमोडेटिव हैं, अप्रिशिएटिंग हैं, हमें रिकग्निशन मिल रही है, गिव डैम टू दैट पावर यार। पावर तो वो है कि जब आपके आसपास कुछ अच्छा नहीं चल रहा, आपके बाहर क्याओस है, लेकिन फिर भी अंदर एक डिटर्मिनेशन है, फिर भी आप कहते हो कि मेरे को तो अपने सपने पूरे करने हैं, चाहे वो मेरे सपने मेरे बच्चों के सपनों में ही क्यों ना छुपे हों। एब्सोल्युटली। Why we take it as a sacrifice? This is another strength, yaar. This is another power. This is another ambition. आई So ये चीजें शेड करने की जरूरत I usually say in my course, like motherhood में जो early days होते हैं ना, that is not a sacrifice, that's an investment, हम अपने बच्चों के साथ जो टाइम का, प्यार का, everything जो कर रहे हैं, because we all see it as a sacrifice, करियर में है। हो रहा है बिल्कुल। everything, but I think अगर हम उसे और अलग नजरिए से देखें तो वो बहुत ही खूबसूरत है, and I think I really miss those phase, जो early motherhood के होते हैं। एंड पता है क्या, हम वर्किंग वुमेन के साथ तो ये बहुत ट्रेजेडी है कि हम लोग इतना ज्यादा उस गिल्ट साइकिल में झूल रहे होते हैं कि Yeah, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ मिसिंग हुआ तो भी हमारी गलती है, पर्सनल लाइफ में हुआ तो भी हमारी गलती है। और यही बैलेंस मेंटेन करते करते हम अपना पीस ऑफ माइंड जो है उसको बिल्कुल ही दरकिनार कर देते हैं। ठीक है ना, और इसी से ही आइडेंटिटी क्राइसिस आता है। आइडेंटिटी क्राइसिस फीमेल में इतना ज्यादा डोमिनेटिंगली मैं देख रही हूँ कि मेरी क्या पहचान है, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या बिसात है, जो है उसको छोड़ के, उसको अनदेखा करके जो नहीं है, दैट पार्ट ऑफ ग्लास विच इज एम्प्टी, empty, वी ऑल द टाइम आर लुकिंग ऑन दैट, और यही हमारा मिड लाइफ क्राइसिस बन जाता absolutely, ma'am. है। यस, आई होप आई कुड जस्टिफाई योर क्वेश्चन। या मैं थोड़ा डेफिनेटली अलग मैम, चली मतलब जाती बहुत ही डीप में आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि जो हम लाइफ की रियलिटी है ना, हम उसे नहीं देख रहे, एक वो फेम सक्सेस, आपके अगर लैंग्वेज में कहूँ तो वो एक मेंटल फॉग में जी रहे हैं मैम हम। तो इट हूँ। इज वेरी एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट, वो फॉग हटा के हम रियलिटी देखें एंड समझें, बिकॉज दैट्स हाउ हमारे लाइफ में एक वो हार्मनी और पीस, और जब हम अंदर से वो कंपटीशन स्पिरिट, मतलब दूसरों के साथ वो खत्म हो जाएगा ना, तो लाइफ बहुत अच्छी लगती है। वी हैव टू compete विद आवर सेल्फ, कल से आज में मैंने क्या अच्छा एग्जैक्टली। पढ़ा, हाउ डिड आई या ग्रो, व्हाट डिड आई लर्न, तो वो एटीट्यूड शिफ्ट बहुत जरूरी है। अपने को हर रोज पहले दिन से बेहतर बनाना, अकॉर्डिंग टू माय ओन विश, नॉट फॉर द स्ट्रक्चर वी आर ट्राइंग टू अच्छा, फिट इन। या एब्सोल्युटली। और ओके। आपने नारी शक्ति की बात की, तो मैं अपनी बुक से 4 लाइनें और जरूर पढ़ना चाहूंगी, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। या हिम्मत बुलंद है इनकी, हौसलों में उड़ान रखती हैं, किसी भी लेवल पे हो वो लेडी, हिम्मत बुलंद है इनकी, हौसलों की उड़ान रखती हैं, कदमों तले जमी तो क्या, हम आसमान रखती हैं। ओ वाओ, वंडरफुल मैम, आई एम श्योर। नारित्व का परचम लहरा रहा है, नारित्व का परचम लहरा रहा है अब तो चारों ओर, हर क्षेत्र में, मतलब हर फील्ड में नारियां अब सफलता की शान रखती हैं। और वो फील्ड, डोंट फॉरगेट माय डियर लेडीज, मदरहुड इज ऑल्सो ए प्रोफेशन।
Yes. Okay. This is a wonderful and important reminder to all the viewers, new moms, stay-at-home moms. Please अपने आप को demotivated मत कीजिए, अपने आप को वो identity crisis में मत लेके जाइए, because you are raising the future generations. Just pour out your heart. आप अपने बच्चों के साथ ये जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, आने वाले सालों में वो उनकी पर्सनालिटी में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा. Yeah, you are so right, Jyoti. Thank you. You have mentioned this. Thank you so much. Yeah. So, ma'am, in your book, you have highlighted about work-life balance. Can you please share Mhm. some of the insights and tips for the women who how they can build a support system in their life? Very, very genuinely required question, Jyoti. Thank you so much for this, because this is the main baggage we all are carrying on our head all the time, in all the roles and responsibilities, in spite of being so good, efficient, and doing our best. Still, we have so many guilts, regrets, and self disclaimers, as I earlier said. Yeah. So, यहाँ मुझे लगता है कि शब्दों का सही इस्तेमाल, आपको पता है कि हाउ वी कम्युनिकेट, हाउ वी यूज आवर वर्ड्स, ये हमें अर्श से फर्श तक ला सकता है या फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता Wow. है. तो सबसे पहले कम्युनिकेट वाइजली एंड क्लियरली about your responsibilities, burdens, stressors, or if you are not able to manage anything anywhere, either your professional life or your personal life. Okay. अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस ही नहीं करेंगे, शेयर ही नहीं करेंगे, आसपास के लोगों को कैसे पता चलेगा? नो बॉडी इज माइंड रीडर, पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं उनको समझना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए. और यही उलझन हमें अपनी जेन्युइन इश्यूज भी अपने जेन्युइन लोगों के साथ शेयर करने में भी कई बार बड़ी प्रॉब्लम आती है. और धीरे 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 ये जो बैगेज अंदर जा रहा है, क्लटर इकट्ठा हो रहा है, ये हमारे मन में गांठें बना देता है. Absolutely, ma'am. और मेरी बुक में एक चैप्टर है, मन की गांठें खोलें. वो चैप्टर, और मैं या sorry to interrupt. I mean, वो chapter तो was an eye opener for me, and it really took me to the core कि how are we doing injustice with our this present life. इतनी गांठें, इतने सब कुछ हम अंदर दबा के रखे हैं. I think it's very important to ये गांठें खोलना एंड रिश्तों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. बहुत जरूरी प्लीज कंटिन्यू. हमारे ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हैं, आई एग्री. कई बार जताए से भी लोग नहीं समझते, कुछ ऐसे रिश्ते में डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं लोग. यहाँ मैं एक फीमेल होने के नाते ना एग्री करती हूँ, एडमिट करती हूँ, और मैं चाहूंगी कि हम सब लोग इसको सेल्फ एक्सेप्टेंस करें कि हम लोग ना बहुत उलझा देते हैं चीजों को. हम इमोशनल एंगल से इतना सोचते हैं. मेल्स दे आर वेरी रियलिस्टिक, वेरी लॉजिकली एनालिटिकली क्लियर. उनसे नहीं होता है तो वो कहते हैं नहीं होता है भाई, तुम मेरे को अच्छा मत समझो, बुरा समझो, वट. पर ये बीमारी हम फीमेल में बाय डिफॉल्ट हमारे इनबिल्ट सिस्टम में ही है, कोर में ही है, कि हमें अच्छा ही बनना है, हमें अच्छा ही समझें सब लोग, हमें सब तारीफ ही करें, कोई मेरे बारे में ये ना कह सके कि मैं ये नहीं कर पा रही. तो ये भी कहीं ना कहीं एक इनर सेल्फ डिस्क्लेमर ही है जो हमें परफेक्शन सिंड्रोम की तरफ लेके जाता है. और वर्क लाइफ बैलेंस में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है परफेक्शन सिंड्रोम. कुछ भी चीज, कुछ ना कुछ तो छूटेगा. मैं एक मंत्रा उन सभी अपनी फीमेल स्पीशीज को देना चाहती हूँ, अपनी ट्राइब को देना चाहती हूँ जो इस स्ट्रगल को फेस कर रही हैं, वर्क लाइफ बैलेंस. प्लीज कुछ ना कुछ तो छूटेगा. और ठीक है, इट्स ओके. आप इंटेंशनली नहीं छोड़िए. आप किटी पार्टीज में जा रही हैं, आप फन कर रही हैं, आप इग्नोर कर रही हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड कर रही हैं, दैट इज डिफरेंट स्टोरी. But till you are busy in office, you can't take care of your child at home. So for that, delegate. Seek help. Seek help from the right sources at the right time. कई बार आप गलत जगह से हेल्प सीख कर रही होती हैं, वहां से नहीं मिलती, फिर हम कहीं से नहीं लेते. और उनके दुख में, उनकी शिकायत में, उनकी चिक चिक में हम अच्छे भले जो आसपास के और रिसोर्सेज होते हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं. मैं आपको पर्सनल एग्जांपल जरूर बताना चाहूंगी यहाँ.
आई हैड बीन इनटू ए वेरी लार्ज जॉइंट फैमिली ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ, जिसमें सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड एजुकेटेड हैं और हम ही लोग सिर्फ वर्किंग में थे, है ना। तो मेरे पास कोई भी फाइनेंशियल या फैमिली सपोर्ट नहीं थी व्हेन आई गेव बर्थ टू माय फर्स्ट गर्ल चाइल्ड। इट वाज माय चॉइस कि मुझे काम पे जाना है, मुझे अपना खुद का एक मुकाम बनाना है, मुझे अपने हस्बैंड के नर्चर किए हुए डिवाइस किए हुए ड्रीम को नर्चर करना है, उसे रियलिटी बनाना है। दैट वाज माय चॉइस। मेरी मदर इन लॉ ने कभी नहीं बोला। शी वांटेड ए वेरी सिंपल, कम पढ़ी लिखी घरेलू लड़की, घरेलू। ताकि वो उनका पूरा चौका संभाले। हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि शी शुड अंडरस्टैंड? Yeah. It is my moral responsibility first to understand she's suffering. Okay. I was not her choice. I have been imposed on her. Okay. So I can't impose my choices on her now. एक ही काफी है। तो मैंने पहले उन्हें समझा। I never expected that help from her in that age. She was at home. It was more than enough for me. In my neighborhood, there was a family who have 5 daughters. At that time, they all were young and unmarried. So we have a very good bond. They supported me so much. Through this platform, I pay all my gratitude and acknowledge their help, support, assistance, facilitation at that time. But it was me who could see that, who could seek that. Yeah. और वो मुझे भर भर के मिला। अगर मैं वो अपनी मदर इन लॉ से ही एक्सपेक्ट करती रहती और उन्हीं पे डालती रहती, सिचुएशन ही कुछ और होती थी। और होती, और फिर वो हम उन्हें ब्लेम के नजरिए से देखने लग जाते हैं ना हर चीज में, कि वो तो हेल्प ही नहीं कर रहे मुझे। Exactly. And we need to build a very good team at both ends, प्रोफेशनल पे भी और पर्सनल एरिया में भी। अकेले कोई भी जो है ना तीर नहीं छोड़ सकते, हम सारे तीर अकेले नहीं छोड़ सकते। वी नीड ए टीम। तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे फीमेल स्पीशीज मेरे से शेयर करते हैं कि हम इतना कमा ही नहीं पाते कि हम हेल्प अफोर्ड करें। तो अब आज मेरे को देख के उनको लगता है कि आपके पास तो सब कुछ है, आपको ये कहना बड़ा आसान है। मेरे पास भी वो नहीं था। आई क्रिएटेड दैट वेल्थ बिकॉज इट वॉज माई चॉइस। I should not expect it from my in-laws or parents or my spouse कि आप मेरा वो हेल्प का फंड करो। If they can do, definitely they must do. But if they can't do, why should I expect that? Till then, I manage somehow by other means. धीरे 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 मैंने जैसे जैसे अपना रेवेन्यू बढ़ाया, वैसे वैसे अपने हेल्प के रिसोर्सेज बढ़ाए। तो इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है राइट हेल्प सिस्टम पे। कई बार मैंने देखा है लोग वहां बहुत कंजूसी कर जाते हैं जस्ट टू, जिसको कहते हैं ना कि रिसोर्सेज को की तरफ ध्यान रहता है, पहले ये खरीद लें, पहले ये बना लें, इधर तो मैं कर ही लूंगी। नहीं, पोजेशंस, मटेरियलिस्टिक चीजें, कपड़े, ज्वेलरी, बहुत सारी चीजें वेट कर सकती हैं। आप अपने सुख, अपने सेल्फ केयर और अपने बच्चे की जो फैसिलिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज मत करें। कॉम्प्रोमाइज। ठीक है। सो नो एस्केपिज्म होना चाहिए, किसी भी चीज से भागना नहीं है। जब आप पूरी शिद्दत के साथ उसका सामना करने के लिए तैयार होते हैं और यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोचते हैं मुझे तो ये करना है, मुझे पता है सब ठीक हो जाएगा, मुझे सब कुछ आसपास मिल जाएगा, सारी यूनिवर्स, सारी कायनात जुट जाती है वो जुटाने में। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। आई ऑल्सो एग्री। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, मतलब काफी चीजें हैं, अगर आप दिल से मतलब डेडिकेटेड हो कि यस मुझे ये करना है, तो अपने आप यूनिवर्स विल फाइंड इट्स वे कि कैसे होगा सब कुछ। अपने उस मुश्किल दौर में मैंने ये 2 लाइनें लिखी थी, बोलना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो। यस मैम, प्लीज गो अहेड। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाते हैं, संकल्प का धन चाहिए। वाओ, वंडरफुल। वो एक संकल्प होना चाहिए कि हाँ हमें कुछ कर दिखाना है, देन नोबडी कैन स्टॉप यू। वो ना आपका वो ड्राइविंग फोर्स ही इतना शानदार और जबरदस्त होगा ना कि ऑटोमेटिकली यूनिवर्स विल अलाइन ऑल द थिंग्स इन प्लेस। यस। और आपने बात की थी मन की गांठें खोले वाले चैप्टर की, तो जितना मजा आपको आया मैं चाहूंगी आपकी ऑडियंस से भी हम 4 लाइनें शेयर करें उसमें से, यस ताकि वो भी मजा ले सके। पक्का, जरूर मैम। यस। सो दैट इज, ना उलझाएं ताने बाने, ओ मेरी नारी सखी,
ना उलझाएं ताने बाने, ना बनाएं टूटने के बहाने, Okay. दीवारें गिरा दें पुल बना दें, दीवारें गिरा दें पुल बना दें, आओ बैठो बात करें। हम क्या कहें और तुम क्या समझो, ये फर्क मिटा दें, हो खुला दिलों का आसमां। हम क्या कहें तुम क्या समझो, ये फर्क मिटा दें, हो खुला दिलों का आसमां। दुख के बादल बिखरा दें, बोझ हटा दें, शेड ऑफ ऑल द बैगेजेस प्लीज। रिश्ता दृढ़ बना दें, चाहे वर्क लाइफ में है चाहे पर्सनल लाइफ में है, हर रिश्ते को स्ट्रांग बनाइए, आओ बैठो बात करें। वंडरफुल। एंड मैं ऑल द व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अभी भी अगर आपको लग रहा है आपके मन में वो बोझ है, बैगेज है, एंड यू रियली वांट टू शेट इट आउट, प्लीज डू कनेक्ट विथ मैम बिकॉज शी इज अ फैबुलस expert counselor. She will really help you and she has n number of programs and workshops. अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी सीखना चाहते हो, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, या खुद को भी ग्रूम करना चाहते हो, शी हैज प्रोग्राम जहाँ पे आप अपने आप की भी ग्रूमिंग कर सकते हो। प्रोकास्टिनेशन मतलब क्या नहीं है मैम के पास। So do connect with her. I'll be sharing all the details in the description box, and you can connect with her via her email ID also, that is swinseni@gmail.com, and her organization name is the Mind Mentors. She is based in Hoshiarpur, but yes, she do take virtual counseling also. So I would request, कहीं भी कुछ भी वो hesitation है, तो I think this is the right time. Universe guide कर रहा है through this podcast, heal yourself, because that is very very important. So मैम Thank बहुत मजा आया, एंड एज यू सेड जो आपने अपना रियल लाइफ एग्जांपल बताया सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करने का, आई थिंक ये बहुत अच्छी क्लैरिटी आ गई होगी सभी फीमेल्स में, दैट यू नो हाउ टू कौन से एरियाज में हमें वर्क करना है, बिकॉज समटाइम्स ना हम रॉन्ग डायरेक्शन में बहुत ज्यादा एनर्जी डाल देते एंड देन वी क्रिब अबाउट इट। तो इट इज वेरी you. Yes. इंपॉर्टेंट आप ये समझे कि कौन से रिसोर्सेज आर रेडीली अवेलेबल टू हेल्प यू और उन पे हमें कैसे काम करना है, राइट। एंड आई थिंक वो पीपल प्लीजिंग एनवायरनमेंट से बाहर निकल के हमें खुद की आइडेंटिटी पे, खुद की ग्रूमिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और तो यहाँ मैं एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी बाउंड्रीज पे एक जरूर ऐड करना चाहूंगी आपकी पॉइंट्स में, यस कि जब हम हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करना सीख लेते हैं तो हमारा बहुत सारा एक्स्ट्रा बैगेज उतर जाता है, परफेक्शन सिंड्रोम भी खत्म हो जाता है, हम रियलिस्टिक तरीके से सही दिशा में अपने गोल्स डिफाइन और अचीव कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो हेल्दी बाउंड्रीज से ना मुझे एक जस्ट मेरा रियल लाइफ एग्जांपल याद आया, आई क्विकली शेयर इट। तो आज या हमारे श्योर। एक खास फ्रेंड की डॉटर की वेडिंग थी, तो ऑल ऑफ देम वर गोइंग, मेरे जो जितने भी ग्रुप में थे, एंड आई वाज प्रीटी श्योर दैट दिस टाइम आई वोंट मेक इट बिकॉज आई हैव माय सन्स एग्जाम टुमारो। सो वो है कि रात को लेट हो जाएंगे, आई डोंट वांटेड टू डिस्टर्ब हिम। बट कल परसों भी मेटर संगीत सब बड़े पुश कर रहे थे कि नहीं ज्योति आ जा, अभी तो छोटा है कोई बात नहीं, बट आई न्यू कि इफ इट इज नो देन नो। फिर घर आके हाँ क्लास वो हैज आल्सो गॉन विथ मी, तो कह रहा है आप चले जाओ ना, मैं पापा के साथ कर लूंगा। मैंने कहा नहीं बेटा, इफ इट इज नो इट्स हाँ। नॉट नो। मुझे वो गिल्ट भी नहीं यस। चाहिए कि यू नो सर्टन थिंग्स। तो ये बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। सी नोबडी, आई अंडरस्टैंड। या वो आई एक एग्री। बार वहां पे सबको अच्छा लगेगा, बट आई नो दीज आर द फाइनल एग्जाम्स, वंस इन अ वाइल आने हैं बच्चों के। तो वो बहुत ज्यादा आपको माइंड में क्लैरिटी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। डोंट बी यस यस पर्सनालिटी, इट्स ओके, लर्न टू से नो, बिकॉज आई थिंक हम लेडीज की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि हम नो नहीं, ना नहीं बोल सकते या किसी को बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं कर बिल्कुल। सकते। यस। So, ma'am, I think we are almost in the end of our segment, and मेरा तो मन कर रहा है कि ये बातें किए जाऊं आपसे, but to take थैंक यू। care of your time also. So this is यस। the almost last question, that what one message of hope and inspiration you would love to give to our audience and ladies out here, and how they can reach the sky, you know, because the sky is the limit. तो आप प्लीज हमसे शेयर कीजिए मैम। सो अगेन, आओ छूले आसमां। यस आई मैम। विल ट्राई टू रीड आउट फ्यू लाइंस फ्रॉम दैट। वैसे तो ये मेरे पूरे मानस पटल जिसको बोलते हैं ना, मेंटल फ्रेम में फिट है, तो ओके। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल या यस।
दिल दिमाग में इल्म हुनर में, दिल दिमाग में इल्म हुनर में किसी बात में कम तू नहीं, पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी। जग को जीवन देने वाली, हर विपदा तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी। संभावनाओं के खुले आसमान में फैला लो अपने पंख, भरो ऊंची उड़ान। अवसर मिल रहे हैं इतने सारे, बना लो अपनी एक अलग पहचान। शिक्षित हो, सशक्त हो, तो कर लो ना पूरे अपने अरमान। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, समझ कर अबला नादान। शोषित ना कर पाए कोई, बस इतना रहे ध्यान। पाने को अधिकार बराबरी का, पाने को अधिकार बराबरी का, रखना होगा मर्यादाओं का भी सम्मान। खुद को साबित करके बढ़ाना होगा खुद का स्वाभिमान। किसी और के लिए नहीं करना है, खुद के लिए। मुझे उससे जीतना है, मुझे उससे आगे बढ़ना है, उसको प्रूव करना है, नो। ये जंग जो है वो गलत दिशा में चली जाती। बिकॉज मुझे लगता है कि स्त्रियों को ना अपना हक पाने के लिए, बराबरी का या अपनी पहचान बनाने के लिए जंग से ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। वाओ। तो Agree. शालीनता से ही कायम रखना है हमें अपने प्रतिभा का अभिमान। क्योंकि ये जो एक सॉफ्टनेस, काइंडनेस, कंपैशन, नर्चरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी, लिसनिंग, हगिंग, केयरिंग, ये जितने भी ट्रेड्स गॉड ने हम में डाले हैं ना, ये किसी और स्पीशीज में नहीं है। प्लीज डोंट लूज देम इन द रेस ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट, एस्टेब्लिशमेंट और रिकग्निशन। दिस इज द ओनली मैसेज आई शुड गिव। वंडरफुल मैम, हैट्स ऑफ टू योर राइटिंग स्किल्स। मतलब मैं तो सच में आपकी फैन हूँ बहुत बड़ी। So I think just keep on learning, keep on empowering, trust your wings and उड़ान भर लो बस अब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मैम जाने से पहले, गुड बाय कहने से पहले, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज मेरे व्यूअर्स को आपका फेवरेट कोट सुनाइए। बिकॉज मैम की क्लासेस में ना हम गाने और कोट्स ये सब बड़े मजेदार होते हैं, तो हमारे कोर्स की शुरुआत ही गाने से होती है एंड वी आर सो पेप्ड अप कि वाह, अब नेक्स्ट 1.5 2 घंटे तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो मैम प्लीज वन कोट फॉर ऑल द व्यूअर्स। There are so many in my favorite box actually, पर one of the most favorite one जो मैं अपनी फीमेल ट्राइब के लिए जरूर हमेशा चाहती हूँ कि वो अपने दिमाग में फिट कर लें, और जो मैंने भी अपनी उम्र में अब तक निभाया और आगे भी निभा रही हूँ। दैट्स हाउ आई एडोर माई एग्जिस्टेंस माई सेल्फ। जितना प्यार आप सब लोग मुझे करते हैं उतना मैं खुद से भी करती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा इस चीज को दिमाग में रखा है, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। तो वंडरफुल। डिफाइन योर गोल्स, डिफाइन योर गोल्स, डिफाइन योर ड्रीम्स एंड देन परस्यू देम। यस। एंड आई थिंक ये जो, और तब आपको लगेगा, एक एक बात और, सॉरी, हाँ जी, हाँ जी मैम। मैं काफी अकेली हूँ, या मैं अकेली ही काफी हूँ। आहा, वाह, तो अब तो मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैम ने इतना बढ़िया क्लोजिंग एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज हमें दिया है। तो अब आप एनालाइज कीजिए विच, कौन से साइड है आप काफी Yeah. है या फिर मैं काफी नहीं हूँ, विच वॉइस यू आर हाँ। लिसनिंग। वंडरफुल मैम। और प्लीज एक छोटा सा गाना भी सुना दीजिए। एक दो हाँ। लाइन। ओह माय गॉड। चलिए, गाना एक बहुत जनरल रखते हैं, नॉट ओनली टू फीमेल्स, बट डेफिनेटली घूम फिर के ये फिट हम ही पे होता है। ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। वंडरफुल Thank you. मैम।
So thank you so much, ma'am. And it has been great talking to you, learning about your experience, your wisdom, and to all the viewers, I'm sure I'm definitely going to catch ma'am for another series of podcast because जितना हम उनसे बात करते हैं ना, I tell you हर एक लेवल पे क्लैरिटी आती जाती है, and which is very Thank necessary कि हम जिंदगी को समझें, एक हम अपनी कहानी खुद लिखे because as this is a series, so I think we all have that power, अपनी कहानी लिखने के लिए, स्टोरी लिखने के लिए, बस ये है कि हमने पेन किसी और को पकड़ा रखा है. It is very important to Oh, hold the pen, grip लो अपनी जिंदगी को, पकड़ लो and शुरू कर दो अपनी कहानी लिखना, and then you will be truly unstoppable. And ma'am, yes. thank you so much for your time, love, and I know आपके इतने busy schedule में से आपने podcast पे आने के लिए you agreed Right. upon, and Sunday होने के बावजूद you spare this It's special my day. pleasure and privilege, darling, because I adore you not as a student, as a participant, even as a human being. In your whole existence, I love and respect you as you are going through the flow of life at the moment. Thank you so much, Kudos. ma'am. Keep blessing us, and to all the viewers, check the description box. And if you have any questions regarding this entire podcast, you can definitely share it in the comment section, and our team will definitely get back to you. So thank you once again, ma'am. Ko from my heart, एक virtual hug हो जाए tight आपके साथ. And I really, really, I'm going to cherish this podcast. And Thank yeah. So all the viewers, take care, stay inspired, stay motivated. Bye-bye. See you next. Thank you. God bless. Yeah, God bless. Thank you. thank you.